Yes, yeah, I welcome you all for this grand event of uh, financial education, and this is being held in the view of upcoming Women's Day, which is on 8th of March. Most importantly, HDFC Mutual Fund, which runs a nationwide campaign called Barni Se Azadi, they have on a single request uh, agreed to guide us on this matter. As you all know, Barni is a traditional means of keeping the cash, and even today, many women keep cash in Barni. So it is there basically a unique proposition and initiative to educate the women financially and make them independent. So we will start the program, and first of all, happy Women's Day in advance to all of you. Thank you so much. Is the screen visible to everybody? Yes, Yeah. Amitji, it is. So this is a program co-hosted by uh, HDFC Mutual Fund under their unique theme Barni Se Azadi and Interinvest Goal Innovations. Today's main speaker for the program will be Prarthana Dave. The theme for the program is Today's Woman from Homemaker to Home Finance Manager. It is going to be a very interesting session, I can assure you right up front. This is in brief, the flow of the program. Uh, I will take 10 to 15 minutes to introduce you about the women and investing study, the latest research that is going on across the world in the field of women's investing. Then the main program and the main theme would be a home finance manager, how a woman can become a good home finance manager and a good investor. So Prarthana ji will guide us on that matter, and there will be a question and answer session. The session will be interactive, and I request each one of you to participate in the program. And finally, the much awaited thing, this is our second Woman in Investing Awards. This award will be given to the three women investor who have shared their unique initiatives and unique practices, good practices. And the intent of this is to inspire each one of us to do better. I will request everybody to keep the mic off, and in case if there is some login issues, then you can contact Deepak. Deepak's phone number is given at the bottom. You can note it down. तो शेवटचा प्रश्न आहे तो हां. तीन असतात की चार असतात परवा तुझे जो मोबाईल आहे का? Deepak and मम्मी Chandani, I will पाहून आपण request you to इंटरनेटवर put in mute if there is some noise. Now coming to this interesting study done by Fidelity Investment. The study is Fidelity Investment 2021 one woman and investing study. It's a huge study carried for last 10 years on 5 million investors, 5 million Fidelity customers. And surprisingly, they found that women as an investor have outperformed the male counterparts
by 40 basis point or 0.4%. So this is a very authentic study done for a very long term by one of the most prestigious institute and organization of global prestige. So this is one of the most important thing. सर एक 2 मिनिट के लिए Yeah. मैं इंटरप्ट करूंगा. रेखा मॅडम, तुमचा व्हिडिओ आणि ऑडिओ दोन्ही बंद करून घ्या. येस. ज्यांचंही चालू आहे ऑडिओ आणि व्हिडिओ त्यांनी बंद करून घ्या. Yeah, request you to put request you to put mic on mute mode. Other than this, Deepak, as a host, if you can make the mute, please try it. Then other than this, there are many other studies that have been done. One by Warwick Business School. So they have found that the outperformance is actually 1.8%. So as per DNA, women are better investor than men, and I will tell you why it is so. This is another very interesting thing. The study shows that overwhelming majority of the women are very good at managing the home finances. ऑफ कसा करायचा? दिस वन. Yeah. Please press the mute button. Yeah. So majority of women are, in fact 68% of the women are confident about managing their household budgets. So as a CFO, chief finance officer of a company, if we consider home as a company, then the woman as a CFO, they are confident and successful in that capacity. But when it comes to woman as an investor, 29% of the women are confident about the investing matters. So as a CFO, they are confident in managing the home finances and the budget to the extent of 70%. But when it comes to the investing confidence, that confidence is only 30%. This is very interesting. Now the question is, why is it so that women are good as an investor, better as an investor? So the Fidelity study throws some of the most interesting facts. First fact is that women deal with the market swings better than the men. At the bottom I have shown the market swings, like at the peak of the market, stock market or any other market, there is a euphoria and people are very passionate about investing. And at the bottom right now you can see we are at the phase of anxiety and denial, but there is no panic as such. But when there are big crashes, then there is a capitulation and depression, or the bottom, like we observed in the corona times or in the 2008 housing crash. So at both the times, women are more rational than the men. They are less impulsive and less reactionary. Moreover, women spend more time in educating themselves and researching. They are not impulsive in investing like men. The best thing about women is that they have a higher tendency of budgeting the things and planning for the goals. Major reason why women earn higher returns is because they trade less frequently. Because in trading there is a single rule: the more you trade, the more you lose. Then another important thing is women are willing to listen and willing to learn from others, from advisors, from the experts. And another important thing, women watch their portfolios less frequently. I have seen during my 15 years of experience, people ruin their portfolios by frequently watching it. And they can't understand the difference between somebody who is sitting on terminal and watching their portfolios, watching their trades and watching their portfolio. Ideally, portfolio should be reviewed once in a year, 1 to 1.5 years.
these findings are consistent and in line with the book that we will be giving to the winners of today's Women in Investing Award. The book is Warren Buffett Invest Like a Girl and You Should. You will be very happy to note that the Warren Buffett style of investing and thinking is very similar to that of a girl or a woman. Another very interesting thing which will surprise you is that when it was studied for the unmarried woman, their outperformance was 2.3% as compared to the broader woman. So if I were to talk about the if I have to put my money, I will prefer to invest my money in the hands of an unmarried fund manager. And these are some small insight what is going on at the DNA level or at the hormones level. The men have a mentality or tendency to follow the herd mentality. It is related with the higher testosterone level in men as compared to women. On an average, they have 10 times the testosterone levels, and that is one factor that has been related with the outperformance of the men. The other performance is the role of a cortisol. There are many other things with women like investing style, then spending pattern, budgeting. Regarding spending, women are I should have been talking openly about the spending, but because my wife is also attending the program, so she may take it personally, so I won't talk about the spending habits of the woman. But in general, women are basically they are more responsible, it seems, than the men. Now, without taking much time of you, with this insight, I will now hand over this stage to our main guest, Prarthana Dave madam. I will briefly introduce her first. She is promoter of the NV Financial Academy. She has rich experience of 15 years in the field of mutual funds. She is a postgraduate in finance and also an accredited wealth planner from CIEL. She is associated with the prestigious financial educational institutes like CIEL, NJ Gurukul and NISM. She has also featured on the national websites like Cafe Mutual and ET Now. And I request Prarthana ji to guide our women investors and let them on this great occasion move to the next level in the world of investing. Now stage is yours, Prarthana ji. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Amit ji, for that wonderful introduction. पर आपने कुछ ज़्यादा ही बता दिया. इतना भी कुछ नहीं है जितना आप बता रहे हैं. But yes, with the little understanding which I have, जो भी ये इंडस्ट्री से सीखा है, वही इंडस्ट्री को वापस देने की कोशिश कर रहे हैं. और जब वुमेन्स की बात आती है तब मैं थोड़ा ज़्यादा पैशनेट हो जाती हूँ. ऐसा जनरली कहा जाता है कि जो टीचर लोग हैं उनको बायस नहीं होना चाहिए, है ना, एकदम निर्दोष होने चाहिए. पर क्या करें, आखिर है तो इंसान ही. तो वैसे प्रोफेशन से लोग टीचर भी बुलाते हैं ट्रेनर्स को, पर टीचर होने के बावजूद जब वुमेन्स की बात आती है तो थोड़ा वो जेंडर बायस उस तरफ हो ही जाता है. और जैसे अमित जी ने बताया, जेंडर बायस तो वॉरेन बफेट साहब को भी है, तो हमें हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. एक बहुत ही खूबसूरत बात मुझे भी याद आ रही है, जो मैंने कहीं पर पढ़ी थी. ये जो संवाद है वो एक माँ और बेटी का है, ठीक है. तो एक बेटी देख रही है, जो माँ है वो सब्जी खरीदने के लिए घर से बाहर निकलती है. बाहर जो सोसाइटी में सब्जी बेचने वाली है वो बाहर से आवाज़ लगा रही है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो. बाहर जाती है, वो जाकर सब्जी वाली से भाव-तोल करती है, बोलती है नहीं नहीं इतने में ही मैं सब्जी लूँगी. सब्जी वाली थोड़ी आगे निकल जाती है, बोले नहीं इतने में तो मुझे नहीं दे पाऊँगी. माँ बोलती है ठीक है कोई नहीं, मेरे को नहीं खरीदनी, आप आगे निकल जाओ.
थोड़ी आगे जाती है, आगे जाकर वापस से वो नापतोल करती है। माँ इधर से इधर नहीं होती। फाइनली वो सब्जी वाली गिव अप करती है, कहती है ठीक है, आपकी बात रख लेते हैं, आप बोले उस भाव में आप सब्जी ले लीजिए। वापस आती है, सब्जी देती है। सब्जी देने के लिए जैसे ही वो अपने सिर से टुकड़ा नीचे उतारती है, सब्जी देती है, उसको थोड़े चक्कर से आ जाते हैं। ये देखकर माँ तुरंत ही उसको मदद करती है और उसको कहती है, क्या हुआ बहन जी, खाना नहीं खाया क्या? तो बोले हाँ, थोड़ी कमजोरी है, कोई बात नहीं, अभी सब्जी जैसे सब बिक जाएगी, घर जाऊंगी, खाना बनाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। माँ कहती है ठहर, बैठ यहाँ पर। माँ उसे बिठाती है, उसको पानी पिलाती है, घर के अंदर से कुछ खाना लेकर आती है, खाना उसको खिलाती है, साथ में एक थैली में थोड़ा खाना भरकर उसके बच्चों के लिए भी उसको देती है। अब ये सारी चीजें बैठकर वो बेटी देख रही है और देखकर उसको बहुत ही आश्चर्य होता है। वो कहती है कि माँ ये तूने क्या किया? माँ बोलती है क्यों, क्या हो गया बेटा? तो बोले माँ, जितने रुपए तूने बचाए थे उससे भावतोल करने में, उससे तो काफी ज्यादा रुपए का तूने उसको सामान दे दिया। तो ये कहाँ की बुद्धिमता है? डू यू थिंक यू आर एन इंटेलिजेंट वुमन? तो माँ हंसती है और उसकी बेटी को जवाब देती है कि बेटी, जब धंधा करते हैं तब दया नहीं रखते, और जब दया करते हैं तब धंधे के बारे में नहीं सोचते। तो कुछ ऐसा ही स्वभाव होता है लेडीज का, वुमेन्स का। तो आप सभी वुमेन्स का यहाँ पर स्वागत है, जिन लोगों में दया भी है, करुणा भी है, और साथ साथ जब वो बिजनेस करती है तो वो बिल्कुल से एक बिजनेस लेडी की तरह सोचती है। वहां पर वो जरा भी नुकसान का धंधा नहीं करती, बिल्कुल से एक एक पैसे उस हिसाब से बनाती है जिस हिसाब से ना कोई और बना सकता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस सेमिनार में, जहां पर हम देखेंगे कि एक होम मेकर से हम होम फाइनेंस मैनेजर कैसे बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। अमित जी हमें नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर जाएंगे प्लीज। हम सबको पता है कि आज जो भारत है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारी आज़ादी को 75 इयर्स हो गए, राइट? और इतने सालों में हमने काफ़ी सारे बदलाव देखे, बहुत कुछ बदल रहा है हमारे देश में। और आज के दिन में अगर देश की शक्ति की बात करें तो वो नारी शक्ति है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोग बात कर रहे हैं। तो ये नारी शक्ति देश को आगे कैसे लेकर जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट और एक फाइनेंस मैनेजर होने का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस रोल के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो कैंपेन SGFC रन कर रहा है, इस बर्नियों में कैंपेन अचार की झलक पकते देखने हैं, की कोशिश करते हैं। पैसे नहीं। अपने पैसों को बढ़ने का मौका दीजिए। बर्नियों से आजाद जैसे कि आप देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड ये एक एंड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन इनिशिएटिव बाय HDFC म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से ये पढ़ें। मंजरी जी का हो सकता है, प्रसन्न जी का हो सकता है, किसी का भी घर हो सकता है। और इस घर में क्या हो रहा है? ट्रेडिशनली हमने देखा है कि सभी घर में जो भी सेविंग्स है वो ज्यादातर एक बरनी में होते हैं। अब बरनी से मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि एक हम ऐसी बरनी की बात करें जिसमें हम अचार भर रहे हैं। ये बरनी किसी भी रूप में हो सकती है। ये बरनी आपकी वो साड़ियों की थप्पियां हो सकती है जिसके बीच में आप पैसे आपके छुपा कर रखते हैं। ये बरनी आपकी वो किताबें हो सकती है जिन किताबों के पन्नों के बीच में आप आपके पैसे को छुपा कर रखते हैं। या तो फिर ये वो भी बरनी हो सकती है जो आप आपके कमरे के किसी भी कोने में सबकी नजरों से छुपा कर रखने की कोशिश करते हैं। आज के दिन में हम आपको ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपकी बरनी है, उस बरनी का स्वभाव थोड़ा हम बदल सकते हैं। इस बरनी को हम थोड़ी मॉडर्नाइज कर सकते हैं। ये जो मॉडर्न बरनी है, ये मॉडर्न बरनी आपके लिए दोनों काम करती है। एक जो आपका पर्पस है कि पैसे, आप बरनी में पैसे क्यों रखते हैं? हम पैसे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि कभी भी हमें पैसे की जरूरत पड़े, हम वहां से तुरंत पैसे निकाल पाए। तो पर्पस ये हमारा एक होता है। दूसरा पर्पस ये होता है कि जब हम पैसे वो निकालने जाए, वो पैसे हमारे कम नहीं होने चाहिए।
राइट। अब यहाँ पर आप देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पैसे कम नहीं हो रहे, पर क्या एक्चुअली वो कम नहीं हो रहे? जरा सोचिए, जो 100 रुपए आपने आपकी बरनी में 2 साल पहले रखे हैं, अगर वो 100 रुपए आज आप बरनी से निकाल रहे हैं और उसको यूज करने जा रहे हैं, क्या वो 100 रुपए की कीमत वही है जो 2 साल पहले थी? 2 साल पहले आप 100 रुपए में जो जो चीजें ला सकते थे, क्या आज आप उतनी चीजें ला पा रहे हैं वो 100 रुपए से? आंसर इज नो। तो क्या बरनी में बैठे बैठे ये रुपए की कीमत है वो कम हो रही है? इसका जवाब हाँ है, अगर आपके साथ आपकी बरनी भी काम नहीं कर रही। तो कुछ कोशिश हम ऐसी करेंगे जहां देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपनी बरनी को भी हम हमारे साथ साथ काम पर लगा पाए। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी जिसका जवाब आप चैट बॉक्स यूज करके दे सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। बताइए मुझे कि घर की जो जिम्मेदारी है, घर की बजट बनाने की जो जिम्मेदारी है, घर को ठीक से चलाने की जो जिम्मेदारी है, इसमें किसका बड़ा हाथ है? ऑप्शन ए घर की महिलाओं का, ऑप्शन बी घर के पुरुष का, या ऑप्शन 3 दोनों का इक्वल हिस्सा है 50-50? आकांक्षा जी बोल रहे हैं ए, इट इज प्रीडोमिनेंटली वुमन। एब्सोल्युटली राइट आकांक्षा जी। ज्यादातर ये चीज होती है कि घर के मर्दों को पता भी नहीं कि घर कैसे मैनेज हो रहा है, राइट। मान लीजिए कि महीने की पहली तारीख को आपके घर में ये एक सिनेरियो है कि पहली तारीख को 50,000 रुपए दिए जाते हैं और ये 50,000 में आपको पूरा महीना चलाना है। अब कोई महीने में ऐसा होगा कि कोई मेहमान नहीं आए, आराम से घर 50,000 में चल रहा है, हाथ में दूसरे 2-4 हजार बच भी जाते हैं। पर साथ साथ में कभी कभी ऐसे भी महीने आते हैं जिसमें बहुत सारे गेस्ट आ गए। अभी जैसे समर आएगा तो आम की सीजन स्टार्ट होगी, तो आम की सीजन शुरू होती है, आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी इस महीने, राइट। क्यों? क्योंकि आम महंगे आएंगे, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि किसी किसी महीने में आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़े। अब इस महीने में आप कैसे घर चला रहे हो वही 50,000 रुपए में? इसकी भनक भी इसकी भनक भी घर के पुरुष को ज्यादातर नहीं होती, राइट। तो मोस्ट ऑफन हम देखते हैं कि जो घर का चार्ज है वो ज्यादातर लेडीज लेती है। बहुत कम, मैं पैसे के हिसाब से नहीं बता रही, मैं ये नहीं कह रही कि कौन ज्यादा पैसे लेकर घर आता है, मैं यहाँ मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ कि जब घर को मैनेज करने की बात आती है तब कौन ज्यादा अच्छे से उसको मैनेज कर रहा है, तो वहां पर ज्यादातर जो रोल है वो फीमेल्स का है। आकांक्षा जी बता रहा है कि आम खाने से बीएमआई बढ़ जाएगा, तो कम खाइएगा। जितने लोगों को कैलोरीज कम करने की ज़रूरत है वो इस पर गौर कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक ये भी चीज़ कर सकते हैं आकांक्षा जी की रॉ मैंगोज खा सकते हैं। आम का रस खाएंगे तो उसमें शुगर आ जाएगी तो शुगर बढ़ जाएगा, सिर्फ आम खाएंगे नेचुरल शुगर है तो इतना हार्म नहीं करेगा जितना आर्टिफिशियल शुगर करेगा। तो बैलेंस करके थोड़ा थोड़ा खाएंगे, साल में एक बार तो मौका मिलता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। सो जनरली आप देखिए एक वुमन का दिन किस हिसाब से निकलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सुबह आपकी कैसे शुरू होती है और आपका जो पूरे दिन का फ्लो है वो किस हिसाब से चल रहा है। तो सुबह उठकर घर की जो भी जिम्मेदारी है वो जनरली जो वुमन है वो कंप्लीट करती है। थोड़ा परिवर्तन आज के दिन में देखने मिल रहा है कि कहीं पर कुछ फैमिलीज में जो मेल मेंबर है वो भी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं, बट आज के दिन भी 80 to 90% इट इज ओनली वुमन हु इज मैनेजिंग द शो एट हाउस होल्ड। जो वर्किंग लेडीज है वो घर का काम जल्दी जल्दी से निपटा कर ऑफिस के लिए दौड़ती है। ये सब काम करते करते बीच में उसके दिमाग में ये भी चल रहा है कि किस हिसाब से पूरी चीज़ें प्लान करनी है। अगर नेक्स्ट मंथ में स्कूल की फीस भरनी है तो वो कैसे मैनेज करना है, ये भी थॉट प्रोसेस साथ साथ में चल रहा है। अगर वेकेशंस ख़त्म हो रहे हैं
तो नई बुक्स खरीदनी है, यूनिफॉर्म खरीदने हैं, बैग खरीदनी है, वाटर बैग्स खरीदने हैं, वेकेशन है, बच्चों को घूमने लेकर जाना है, इन सब का प्लानिंग कैसे होगा, इसके लिए बजटिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें दिमाग में चल रही है। ये सारी चीजें चल रही है, उसके साथ साथ वर्क प्लेस पर कभी भी ऐसा नहीं पाया गया कि जब एक लेडी काम कर रही है, जो टीवी सीरियल्स हम देखते थे जिसमें कॉमेडी शोज होते हैं, तो वो कॉमेडी शोज में हम देखते हैं कि महिला ऑफिस में बैठी है और वो बैठकर साथ में मटर भी छिल रही है। ऐसा लाइफ में कभी नहीं हुआ कि कभी हमने देखा हो कि ऑफिस में, ऑफिस आवर्स में कोई महिला घर का काम कर रही है। नहीं, वो ऑफिस में ऑफिस का काम भी उतनी ही शिद्दत से करती है जितनी शिद्दत से वो घर जाकर घर का काम भी कर रही है। इसके साथ साथ दूसरी जो भी जिम्मेदारी है, जैसे घर के सभी लोगों का ख्याल रखना, हेल्थ के बारे में सोचना, जैसे अभी आकांक्षा जी ने बताया कि भाई बीएमआई बढ़ जाएगा, ध्यान रखना कितना आम खाना है। अब ये सोचना एक लेडी के दिमाग में ही आती है, राइट? तो सबके हेल्थ को भी साथ साथ में मैनेज करना है, जो Prarthana ji, वेल्थ you are दिया not है audible. उससे घर को Is भी she मैनेज audible to करना है, others? अपना पैशन भी मैनेज करना है, उसको भी परस्यू माझ्या ह्याच्यात आवाजच नाही येत. ऑडिओ बंद कर. स्लाइड म्हणेल तर मला सांग ना. आवाज नाही येत आहे. एक सेकंड. डिसीजंस है। यहाँ पर यहाँ पर आप में से कितने लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं? Yes, so we are multitaskers. We can go to the next slide, please. Yes. We can go to the next slide, please. So when it comes to taking decisions, so say for example, आपके घर में आपके हस्बैंड का कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, ये डिसीजन कौन लेता है? हस्बैंड लेते हैं, आप लेते हैं, या दोनों मिलकर लेते हैं? आपके फैमिली में कितना मेडिक्लेम होना चाहिए, ये डिसीजन आप लेते हैं, आपके हस्बैंड लेते हैं, या दोनों मिलकर लेते हैं? आपके बच्चों के फ्यूचर एजुकेशन के लिए कितना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा? क्या 15 लाख की जरूरत पड़ेगी, 25 लाख की जरूरत पड़ेगी, या 5 लाख में ये सारा खर्चा निकल जाएगा? ये डिसीजन है वो क्या आपके हस्बैंड लेते हैं, आप लेते हैं, या आप दोनों मिलकर लेते हैं? आप जब रिटायर हो जाएंगे तब रिटायरमेंट के वक्त आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, ये आइडिया, ये कैलकुलेशन करने के लिए कौन बैठता है? आप बैठते हैं, आपके हस्बैंड बैठते हैं, या आप दोनों बैठते हैं? Okay, so both and financial advisor helps you. Okay, fantastic. Akanksha ji, I would like to have a small chat with you. If you are comfortable, can you please
unmute and turn your video on. Akanksha ji, would you be able to unmute and be able to join us for a quick discussion? Just a minute. Okay, fine, no worries. Okay, so I'll have a brief talk with Akanksha ji and try to understand how she is doing it, right? We'll try to understand from her how she is doing it. And it is commendable. जितनी भी फीमेल्स इसमें पार्टिसिपेट करती है बहुत बढ़िया काम कर रही है. आपको इन डिसीजंस में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए. अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते तो ट्रस्ट में आप सबसे बड़ा क्राइम कर रहे हैं. ये बहुत बड़ा क्राइम है अगर आप पार्टिसिपेट इसमें नहीं करते. क्यों क्राइम है? आई विल शो दैट टू यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. क्यों वुमेन्स को फाइनेंशियल डिसीजंस में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है? हाँ सर, नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाइए. नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाइए. या सो व्हाई वुमेन एंड इन्वेस्टमेंट? सो रीजन नंबर 1, आज के दिन में इंडिया में जो सिंगल वुमन का रेशियो है ये बढ़ रहा है. You might be surprised to look at the numbers. Today in India, there are 74 million women who are single. Okay. अब ये single होने के कुछ भी reason हो सकते हैं. Reason number 1, they are unmarried. They don't want to get married. It is possible. Reason number 2, they are married but they have decided to separate. They could be divorcees. Reason number 3, they are married. They are not divorcees but they are widows. Right? तो वुमन सिंगल होने के लिए कोई भी रीजन हो सकता है, बट द फैक्ट इज दैट वी सी अ लॉट ऑफ सिंगल वुमेन इन इंडिया. और आगे जाकर ये नंबर्स है ये बढ़ने वाले हैं. लास्ट 2 years जब कोविड क्राइसिस हुए उस वक्त हमने देखा कि बहुत सारे यूथ, टिपिकली वेव 2 में हमने देखा कि बहुत सारे यूथ दे लॉस्ट देयर लाइफ. या विच वॉज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. किसी ने नहीं सोचा था कि इतने यंग कपल्स सेपरेट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. और उस वक्त हमने देखा कि बहुत सारे फैमिलीज में, पढ़े लिखे फैमिलीज में, यहाँ पर हम इग्नोरेंट फैमिलीज की बात नहीं कर रहे, हम लिटरेट फैमिलीज की बात कर रहे हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फैमिलीज हु आर लिटरेट बट अनफॉर्चुनेटली नॉट एजुकेटेड. So why do I say that? बहुत सारी फीमेल्स हमको ऐसी मिली जिन लोगों को बैंक अकाउंट ऑपरेट करना तक नहीं आता था. बैंक में पैसे है पर वो लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि बैंक में दूसरा नाम वाइफ का है ही नहीं. सैलरी अकाउंट था हस्बैंड का, तो सिंगल होल्डिंग में वो अकाउंट था, चल रहा था. अब उसमें सेकेंड होल्डर वाइफ है ही नहीं. एटीएम कार्ड घर पे पड़ा है पर एटीएम में पिन नंबर क्या है पता नहीं, तो वो ऑपरेट नहीं कर पा रही. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब कितनी मिजरी. पैसे होने के बावजूद आप उसको यूज नहीं कर पा रहे अगर आप सडनली सिंगल हो जाते हो. राइट? आप जो पैसे है उसको यूज पा रहे, आपको तो भी आगे जाकर उसको मैनेज भी करना है और आगे के जितने भी डिसीजंस है वो आपको सिंगल हैंडेडली लेने शुरू करने पाएंगे. वी सो so many families and women in particular, they did not have time to cry for the loss. उनके पास टाइम नहीं था कि वो बैठकर अपने दुख को जी सके. क्यों? क्योंकि वो दुख के साथ साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई जिसके लिए they were not prepared. मिजरेबल. इससे ज्यादा मिजरेबल सिचुएशन एक वुमन की लाइफ में नहीं हो सकती. सो दिस इज वन ऑफ द रीजन. हमारे हाथ में नहीं है, हम कितना भी चाहे कि जैसे आज का दिन निकल रहा है कल का दिन भी इतना ही सुनहरा हो. वी नेवर नो व्हाट गॉड हैज इन स्टोर फॉर अस टुमारो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
दूसरा रीजन ये है कि जितने भी वर्किंग वुमेन्स है यहाँ पर, वो लोग ने शायद ऑब्जर्व किया होगा, बट ये जो स्टेटमेंट है ये आप एक नॉर्मल वर्किंग वुमन की तो बात छोड़ दीजिए, पर जो सेलिब्रिटीज वुमन है उनके पास से भी हमने ये स्टेटमेंट्स बहुत सारी बार सुनी है. लाइक वी हैव हर्ड करीना कपूर खान saying this, we have heard Priyanka Chopra saying this for so often कि there is a very very big discrimination in the pay which is received by a male for the similar role which is done by a female. सो मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी में एक मेल को जॉब मिलती है और एक फीमेल को जॉब मिलती है, दोनों के पे में डिफरेंस है. क्यों डिफरेंस है? दिस इज द जेंडर बायस विच प्रिवेल्स इन द वर्ल्ड. बिकॉज ऑफ दिस जेंडर बायस, अगर वुमेन उससे अच्छा भी काम कर लेती है उसको कम पे दिया जाता है, राइट? इसके लिए काफी सारी मोमेंट्स चल रही है, काफी लोग इसके लिए आवाज उठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गैप है इसको मिनिमाइज किया जाए और दोनों को सेम लेवल पर लेकर आया जाए. कब होगा पता नहीं, बट टिल दैट टाइम एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है वुमेन्स के लिए. वो क्या है? वो ये है कि दे विल हैव टू सी कि वो लोग उतना ही काम कर रही है तो भी उनको जो पैसे मिल रहे हैं, अब उनको क्या करना है कि ठीक है, अगर कंपनी उनको सेम पैसा नहीं दे रही है, कंपनी पर डिपेंड होने की बजाय जो पैसे उनको मिल रहे हैं उस पैसे को उस हिसाब से काम पर लगा दे, जिससे क्या हो जाए, जिससे वो पैसा उनको ज्यादा कमा कर दे दे, राइट? सो ये जो पे गैप है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है. इस समस्या के लिए जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश काफी सारे लोग कर रहे हैं, बट हम उस पर डिपेंड होकर नहीं बैठ सकते. हम हमारे एंड से क्या कर सकते हैं? हमारे एंड से ये कर सकते हैं कि जो पैसा हमको मिल रहा है उस पैसे को क्यों ना ऐसे स्मार्टली मैनेज किया जाए कि वो पैसे ही ये जो डिफरेंस है उसका गैप भरने में हमको हेल्प कर दे. Yes, Nilima ji, I absolutely agree with you. Most of the ladies, they don't know banking, they don't know how to transact, and they don't know even how to operate an ATM card. Husbands net banking use कर रहे हैं, वाइफ नहीं कर रही. देखिए, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते. अगर आप बोलेंगे पेटीएम ऑपरेट करना आता है, हाँ आता है, पर नेट बैंकिंग ऑपरेट करना आता है, नहीं आता है. अब देखो, पेटीएम कर सकते हो तो नेट बैंकिंग क्यों नहीं कर सकते हो? देयर इज नो रॉकेट साइंस, राइट? बट देन कभी करने की जरूरत नहीं लगी, हो रहा है, चल रहा है, कहीं पर काम हमारा अटक नहीं रहा है, तो फिर क्यों? छोड़ो ना यार, जैसे चल रहा है उसको चलने दो. नहीं, ये एटीट्यूड है, वो सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है. दिस इज नॉट द प्रॉब्लम विच इज क्रिएटेड बाय सोसाइटी. सोसाइटी ने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है उससे तो फाइट करनी है, पर यार दूसरे प्रॉब्लम हम अपने आप क्यों बिल्डअप कर रहे हैं? उसको तो हम कंट्रोल करने की कोशिश करें, उसको कम करने की कोशिश करें और उसको मिटाने की भी तो कोशिश कर सकते हैं ना. सो उस पर तो एटलीस्ट फोकस करके काम करते हैं. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, आप देखिए मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में अगर आप देखेंगे तो लास्ट मेंबर ऑफ द फैमिली जो होती है वो दादी या नानी होती है, दादा या नाना नहीं होते, right? What does this mean? This means that the life expectancy of a female is more than that of the man. तो एक दिन तो वो आने ही वाला है जब आप अकेले होंगे और आपको सब जिम्मेदारी चलानी होगी. अब पहले हस्बैंड पर डिपेंड थे, बाद में डॉटर या सन पर डिपेंड होना, आई डोंट थिंक सो आज के दिन में किसी को अच्छा लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, माय डियर फ्रेंड्स. Yes, we can go to the next slide. And how we can start working on it? We have to do 3 simple steps. बस 3 चीजें करनी है और ये जर्नी में हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं. So सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टेप है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ सेवर एंड एन इन्वेस्टर. सो सेवर और इन्वेस्टर का डिफरेंस क्या है? जब हम पैसा बरनी में रखते हैं हम एक सेवर है. ट्रस्ट मी, एज सेवर्स वुमेन्स आर फैंटास्टिक. जितना पैसा एक औरत बचाती है उतना पैसा और कोई नहीं बचाता. बट व्हेन इट कम्स टू बिकमिंग एन इन्वेस्टर, वी आर वेरी स्केर्ड. वुमेन्स आर very scared when it comes to becoming an investor.
ठीक है। सो हमें एक सेवर से इन्वेस्टर बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत ही प्रोटेक्टिव होकर नहीं जी पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, आप प्रोटेक्टिव क्यों हैं, हम प्रोटेक्टिव क्यों हैं, हम प्रोटेक्टिव इसलिए है बिकॉज बाय नेचर वी आर रिस्क एवर्स। हम रिस्क को टालने की कोशिश करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिस्क एवर्स से एक कैलकुलेटेड रिस्क टेकर बनना पड़ेगा। आप कैलकुलेटेड रिस्क टेकर कैसे बन सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। जब आप एक कैलकुलेटेड रिस्क टेकर बनते हैं ना, तब रिस्क अपने आप नलीफाई हो जाता है, रिस्क को आप काट देते हो, ठीक है। तो इस रिस्क को काटा कैसे जा सकता है, इसकी भी हम थोड़ी बात करेंगे आज के दिन में। और जो हमारा नेचर है, जो हम एक प्रोसेस ड्रिवन नेचर है। अब देखिए, कोई भी चीज हम करते हैं, अगर खाना भी बनाते हैं तो उसमें भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के हिसाब से हम बनाते हैं। ऐसे नहीं कि पहले ये कर लिया बाद में ये करेंगे, चलो पहले हमने रोटी बनाकर रख दी, सब्जी का कोई ठिकाना नहीं, बाद में सोचेंगे ना कौन सी सब्जी बनानी। ऐसे नहीं काम होता, राइट। एक पूरा प्रोसेस है, उस हिसाब से खाना बनता है और किचन चलता है। तो ये हमारा जो बेसिक नेचर है, वी आर प्रोसेस ड्रिवन एंड वी हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, राइट। हमारे में बहुत पेशेंस है। कैसे समझ में आता है, अब देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी कुक विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, वी आर एबल टू डू दैट, ठीक है। मैंने देखा है महिला को घर पर आइसक्रीम बनाते हुए, ठीक है। अब एक आइसक्रीम जमाने के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, राइट। आप बनाकर उसको जब फ्रिज में रखते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि यार कैसा बना, चलना देखते हैं, चलना देखते हैं, चलना देखते हैं। पर क्या आप बार बार जाकर फ्रिज ओपन करके चेक करते हैं कि ठीक बना है कि नहीं बना है? आप नहीं करते। आप क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता है कि जितनी बार वो फ्रिज को ओपन किया जाएगा, आपकी आइसक्रीम की क्वालिटी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। तो अंदर से आपको भले कितनी भी इच्छा हो कि यार जाकर देखते कैसा बना है, आप नहीं देखते, आप नहीं खोलते, आप पेशेंस रखते हैं। पता है उसको आपको 8 से 10 घंटा देना पड़ेगा, तो वो 8 से 10 घंटा आप उसको देते हैं, उसको बीच में आप डिस्टर्ब नहीं करते। तो हम में दोस्त बहुत ही पेशेंस है और हम प्रोसेस ड्रिवन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो इसके साथ साथ अब डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म अप्रोच से हम कैसे ये इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आगे लेकर जा सकते हैं, उसकी बात करेंगे। मैं थोड़ी बात यहाँ पर आपके साथ रिस्क के बारे में अब करना चाहूंगी। सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ज्यादातर हम ऐसे मानते हैं कि जब हम गोल्ड में निवेश करते हैं तो ये एक रिस्क फ्री असेट है, मानते हैं। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स बिलीव कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से उनका पैसा कभी नहीं डूबेगा। अब वो ऐसा बिलीव क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए बिलीव करते हैं क्योंकि एक्चुअली गोल्ड में उन्होंने कभी नुकसान नहीं किया। अग्री? आज तक आपने सुना कभी किसी ने भी ऐसा आपको बताया हो कि यार मैंने इतना गोल्ड लिया था ना, मैंने लिया था ये प्राइस में और मैंने बेचा ना तब मेरे को इतना ही पैसा मिला, यार नुकसान हो गया? सुना कभी ऐसा? कभी नहीं सुना, राइट। क्यों नहीं सुना? क्योंकि एक्चुअली हमने कभी भी गोल्ड में नुकसान नहीं किया, राइट। अब गोल्ड में नुकसान क्यों नहीं किया, इसके पीछे की मैं स्टोरी आपको बताती हूँ। सबसे पहले, गोल्ड इज इट एन असेट विच इज रिलेटेड टू मार्केट रिस्क? बताइए मुझे, गोल्ड में मार्केट रिस्क है कि नहीं है? यस, नीलिमा जी, मंजरी जी, वैलेंसी, बताइए मुझे कि गोल्ड में रिस्क है कि नहीं है। अगर आप गोल्ड में निवेश करते हो, उसके प्राइजेस है, ये प्राइजेस मार्केट के हिसाब से बढ़ते या कम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं मैम। गोल्ड में निवेश करना अच्छा है, हमें जब पैसा चाहिए है तो हम उसको देकर मतलब हमको मिल जाता है ना तुरंत। फैंटास्टिक। तो मंजरी जी, आपने जो बताया वो बात आपकी सही है कि गोल्ड में निवेश करना चाहिए। यस, करना चाहिए। गोल्ड में जब चाहिए तब पैसा मिल जाता है। यस, पैसा मिल जाता है। बट क्या गोल्ड के प्राइसेस हमेशा बढ़ते हैं?
यहाँ पर मैं आपसे डिफर प्रेजेंटली तो करना बढ़ ही चाहूंगी। रहे हैं मैडम, अभी प्रेजेंटली बढ़ रहे हैं, बट अभी फ्यूचर का भी, बट अभी जिस इससे इन 2-3 सालों में बढ़े हैं एकदम जल्दी 49-50, तो अभी तो बढ़ ही रहा है अभी, इसलिए ठीक है, बात का पता नहीं। राइट। तो गोल्ड में ना प्राइस मोमेंट होता है। तो जो हम कहते हैं मार्केट रिस्क, ये मार्केट रिस्क का मतलब क्या है? मार्केट रिस्क का मतलब ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट या एसेट के प्राइजेस है वो मार्केट के हिसाब से बढ़ते या फिर कम हो सकते हैं, उसको हम मार्केट रिस्क कहते हैं। अब गोल्ड के प्राइजेस में क्या बदलाव होते हैं, कैसे बदलाव होते हैं, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर मैंने थोड़े थोड़े टाइम फ्रेम पर गोल्ड के जो रेट है उसको लिया है। सो 85 में 2000 या 2100 के आसपास गोल्ड का रेट था। 10 साल के बाद ये डबल से थोड़ा ज्यादा होता है, 4600-700 के बीच में इसका रेट है। मतलब गोल्ड को डबल होने में कितने साल लगे? 10 साल लगे। अब अगर 10 साल में गोल्ड है वो डबल हुआ, तो इसका मतलब गोल्ड में रिटर्न कितना हुआ? इसका मतलब गोल्ड में जो रिटर्न है वो 7 to 8% के बीच में हुआ। मतलब 85 से 95 के बीच में जिसने गोल्ड में निवेश किया उसको 10% के 7 to 8% के आसपास रिटर्न मिला। ठीक है, अब इसके आगे क्या हुआ देखते हैं। प्लीज हैव वन मोर क्लिक। राइट। अब 95 में जो रेट 4600 के आसपास था, 2000 में मतलब उसके 5 साल बाद भी उसका रेट उसी के आसपास था, अराउंड 4500 ही था। समझ रहे हैं आप? 95 में भी 4500 के आसपास रेट था, 2000 में भी 4500 के आसपास रेट था। मतलब 10 साल में जिसको 7 से 8% का रिटर्न मिला था, 15 साल के बाद भी वही प्राइस था। तो 85 से लेकर 2000 तक जिसने गोल्ड को होल्ड किया उसका रिटर्न क्या है? 8% से कम हो गया, क्योंकि 15 साल में प्राइसेस वही रहे। राइट। अब राइट। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद के साल में हमने देखा कि गोल्ड का प्राइस एकदम से शूट अप हो गया। अब देखिए यहाँ 10 साल में 85 से 95 में 2000 से 4500, यहाँ आपको 8% का रिटर्न मिला है। बट 2000 से 2010 ये 10 साल है, इस 10 साल में वापस से गोल्ड में आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिले, 4500 से 18500। तो ये 10 साल में जिसने गोल्ड में निवेश किया उसको बहुत अच्छे रिटर्न मिले। आप देख रहे हैं? तो रिटर्न्स क्या आपके कंसिस्टेंट है? आंसर इज नो, रिटर्न आपके कंसिस्टेंट नहीं है। अब लास्ट टेबल की ओर आइए। 2012 में आप देखिए 21,000 का प्राइस है। 2012 से 12 के बाद गोल्ड के प्राइस डिक्रीज हुए। 2015 में ये 26,000 के आसपास थे। तो जिसने 2012 से 2018 के बीच में गोल्ड में निवेश किया उसको एक्चुअली नेगेटिव रिटर्न मिला। अगर किसी ने पैसा 2015 में गोल्ड में से निकाल दिया होता, जिसने 2012 में गोल्ड खरीदा था, तो एक्चुअली वो नुकसान करके निकलता। राइट और रॉन्ग? वो नुकसान करके निकलता। पर क्या किसी ने गोल्ड में नुकसान किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 2015 में किसी ने गोल्ड बेचा ही नहीं। किसी ने गोल्ड बेचा ही नहीं। आप नुकसान कब करते हैं? आप नुकसान तब करते हैं जब आप उसके प्राइसेस कम है तब उसको बेचने जाते हो। क्योंकि आपने बेचा ही नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा कि गोल्ड का प्राइस कुछ भी हो रहा है, आप तो उसको पकड़ के बैठे हो, तो क्या फर्क पड़ा? आपको नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ मार्केट में उसके प्राइस बढ़ते गए, कम होते रहे। आपने कभी नुकसान गोल्ड में नहीं किया। और आज के दिन में ये 50,000 के ऊपर चला गया है। राइट। आज के दिन में गोल्ड में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपने गोल्ड को इतने साल तक क्या किया है? इकट्ठा किया है। आपने गोल्ड को सिर्फ जमा किया है, आपने उसको बेचा नहीं है। तो कभी आपने 2000 का भी सोना खरीदा है, कभी 5000 का, कभी 15,000 का। अब आज जब 50,000 का हो गया है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 50 से कल उठकर
40,000 का भी हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने तो उसको बेचा ही नहीं, आपने उसको पकड़ कर रखा है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ कि वॉरेन बफे की जो बुक की बात कर रहे थे अमित सर, ये बुक क्या बताता है? ये बुक ये कहता है कि व्हेन यू इन्वेस्ट ना, यू इन्वेस्ट लाइक अ गर्ल। अब देखो, आप गोल्ड को इकट्ठा कर रहे हो, आप नुकसान नहीं कर रहे हो, दो इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सखियों, मार्केट रिस्क है कि नहीं? है। पर आपने नुकसान किया? नहीं किया। समझ रहे हैं आप? उसी तरह से मार्केट रिस्क स्टॉक मार्केट में भी है, राइट? म्यूचुअल फंड्स में भी मार्केट रिस्क है। और जब स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की बात आती है, वहां पर जब मेल्स इन्वेस्ट करते हैं, आपके पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग यार नुकसान करके आ जाते हैं। आप मार्केट रिस्क वाली प्रोडक्ट में निवेश कर रहे हो, आप नुकसान नहीं करते। आपके पार्टनर्स मार्केट रिस्क वाली प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, वो नुकसान करके आते हैं। क्यों भैया? अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? आप क्यों नुकसान नहीं करते और वो क्यों नुकसान करते हैं? वो इसलिए नुकसान करते हैं क्योंकि वो जब प्राइस गिरता है तब घबरा जाते हैं, वो पैनिक में आ जाते हैं। उनके पास लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं है जो आपका विजन है। आपका विजन बहुत क्लियर है कि बॉस, गोल्ड है ना, सिर्फ खरीदने के लिए है, बेचने के लिए नहीं है। पर उनका विजन क्या है? उनका विजन ये है कि स्टॉक्स है ना, म्यूचुअल फंड्स है ना, वो बेचने के लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए खरीदते हैं। तो क्या करते हैं? फिर नुकसान करके बैठते हैं। भैया, अगर आप उसको भी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक संजो कर रखेंगे, तो वो भी गोल्ड की तरह आपके लिए एक गोल्डन पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेगा, राइट? So this is the reason why, we can go to the next slide please. This is the reason why everyone says कि जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तब महिलाओं को इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप बताइए, क्योंकि मार्केट रिस्क वाली प्रोडक्ट में भी महिलाएं नुकसान नहीं करती। और इसीलिए म्यूचुअल फंड एज अ सब्जेक्ट हम चाहते हैं कि आप ज्यादा अच्छे से इसको एक्सप्लोर करें और इसको यूज करें, क्योंकि ये भी ऐसी ही प्रोडक्ट है जिसमें मार्केट रिस्क है। और मार्केट रिस्क से जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जब बच्चे थे तब से मार्केट रिस्क वाली प्रोडक्ट में खेलते हो, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा अगर म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क है तो? सो म्यूचुअल फंड में अगर आप इक्विटी फंड्स में जाएंगे, मैं पूरे म्यूचुअल फंड की बात नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, तो अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो इक्विटी फंड्स में निवेश करने के लिए हम आपको एक सिंपल सा रास्ता बताते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ दूंगी, जिस फॉर्मूला से आपको कैलकुलेशन लाइफ में बहुत सिंपल हो जाएगा। व्हाट इज दिस फॉर्मूला? सो फॉर्मूला इज नोन एज रूल ऑफ 15। 15 नंबर को आप याद रखिएगा, रूल ऑफ 15। अब देखिए, 15 अगस्त आपका देश आजाद हुआ था। 15 का फॉर्मूला है, वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करेगा। फॉर्मूला ये है कि अगर आप 15 साल तक 15,000 हर महीने एक ऐसे फंड में निवेश करेंगे जो फंड आपको 15% रिटर्न देगा, ठीक है? 15 साल के लिए 15,000 का हर महीने निवेश अगर आप ऐसे फंड में करते हैं जो आपको 15% रिटर्न देगा, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो जाता है? 27 लाख हो जाता है, ठीक है? 27 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट होता है। ये 27 लाख आप जो निवेश करेंगे, वो 27 लाख आपके 15 साल बाद 1 करोड़ हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 1 करोड़ हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपके 1 करोड़ कैसे होते हैं? आपके 1 करोड़ इसलिए होते हैं क्योंकि इस 15 साल में आपने कभी भी इसमें से पैसे उठाए नहीं है, ठीक है? जिस हिसाब से 15 साल तक आपने गोल्ड बेचा नहीं, अगर आप 15 साल तक ये SIP में से कुछ बेचते नहीं है, तो 15 साल में आपके 27 लाख है वो 1 करोड़ हो जाएंगे, अगर ये पैसा आपका 15% से बढ़ेगा तो। अब इस जर्नी को अगर थोड़ा और आगे लेकर आप जाएंगे, ये
SIP 15 साल की जगह आप 30 साल के लिए करते हैं तो टाइम डबल हो गया, 15 साल की जगह 30 साल, तो टाइम डबल हो गया। उसके सामने आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी डबल हो गया। 15 साल में आपने 27 लाख का निवेश किया, अब 30 साल में आपने 54 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। पर यहाँ पर मजे की बात देखिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है वो डबल नहीं हो रहा। 1 करोड़ के सामने आपको जो पैसा मिलेगा वो 2 करोड़ नहीं होता, वो 10 करोड़ होता है। आपका पैसा 10 गुना बढ़ जाता है जब आप उसको सिर्फ और सिर्फ टाइम डबल देते हैं। ठीक है, ये पैसा आपका 10 गुना क्यों होता है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में, SIP में जिस फॉर्मूले पर ये मनी ग्रोथ होता है वो कंपाउंडिंग फॉर्मूले पर होता है, राइट? तो स्कूल में हमने पढ़ा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चक्रवर्ती ब्याज, या और इसको बहुत प्यार से इन्वेस्टमेंट के जगत में लोग 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। 8th वंडर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्चुअली एक वंडर से कम नहीं है। आपकी लाइफ में ये कुछ ऐसा काम करेगा जिसके कारण आप कभी सपने में भी नहीं सोचते, उस हिसाब का वेल्थ क्रिएशन हो जाता है। अब हाँ, वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नो प्रॉब्लम। अब आप मुझे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मैडम 15 साल में पैसे डालने को तैयार हूँ, 15 साल में पैसे निकालूंगी भी नहीं, ये भी प्रॉमिस करती हूँ, पर क्या आप मुझे प्रॉमिस करोगे कि 15% मुझे म्यूचुअल फंड देगा? है ना, ये आपका क्वेश्चन भी सही है कि अगर 15% मुझे नहीं मिले तो कहाँ से मेरा वेल्थ क्रिएट होगा? सो इन दैट केस यहाँ पर मैं आपको एक ग्राफ दिखाती हूँ। आपको पता होगा कि कोई भी म्यूचुअल फंड है वो फंड 10 रुपए से स्टार्ट होता है। मान लीजिए कि एक 10 रुपए का फंड है, वो अगर 15% से बढ़ता है तो 1 साल बाद वो फंड का NAV है वो 11.5 रुपए होना चाहिए। 10 साल के बाद वो फंड का NAV 35 रुपए होने चाहिए। 20 साल के बाद वो फंड का NAV 142 रुपीज होने चाहिए, राइट? तो अगर आपने मार्केट में ऐसे फंड्स देखे हैं जिसकी NAV 150 से ज्यादा है, मतलब वो फंड ने 15% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। अब क्या मार्केट में ऐसे फंड है अवेलेबल जिसकी NAV 150 से ज्यादा है? आंसर इज ऐसा एक नहीं, बहुत सारे फंड्स हैं जिसकी NAV उतनी ज्यादा है। तो आप सिंपली जाकर गूगल में एक सर्च डालेंगे that please give me name of the funds whose NAV is more than 150 rupees, whose NAV is more than 200 rupees. Trust me, आपको बहुत बड़ा लिस्ट मिलेगा फंड्स का। मतलब जितने भी फंड जितने पुराने हैं वो फंड्स इतना रिटर्न्स देने में कामयाब होते हैं। तो ये रिटर्न्स मिलते हैं, आंसर इज यस, ये रिटर्न्स मिलते हैं। पर सेकंड क्वेश्चन, ये रिटर्न क्या हम लेने के लिए तैयार है? क्या ये वेल्थ क्रिएशन करने के लिए हम तैयार है? तो यहाँ पर एक जो कहते हैं हम कि एक जो टेंशन है, वो टेंशन हमें होता है कि ये जो कमिटमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, ये कमिटमेंट कुछ ज्यादा है। जैसे नीलिमा जी बता रही है कि वी आर टू लेट टू डू सच इन्वेस्टमेंट। व्हाई डू यू थिंक यू आर टू लेट टू डू सच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट नीलिमा जी? I'll tell you what is the actual life of an investor. एक इन्वेस्टर की एक्चुअल लाइफ क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी। So coming to the last slide of today's topic, यहाँ पर मैं आपके साथ एक पर्सनल इंसिडेंट्स शेयर करना चाहूंगी। जब मेरी शादी हुई, यस सर, वो आप वो जो सोने का कंगन है वो कंगन आप रखिए स्क्रीन पर, बस थैंक यू। जब मेरी शादी हुई, क्योंकि यहाँ पर सब महिलाएं हैं तो थोड़ा मैं डिस्कस कर सकती हूँ पर्सनल बात आपके साथ। जब मेरी शादी हुई तब मेरी सासू माँ ने मुझे ऐसा एक सोने का कंगन दिया, और वो कंगन देते वक्त उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि बेटी, हमारे घर में बेटी या बहू उसमें कोई फर्क नहीं है, तो तुम भी मेरी बेटी ही हो, और ये जो कंगन है वो मुझे मेरी सास ने दिया था जब मेरी शादी हुई थी, मैं इस घर में आई थी, और ये जो कंगन है ना वो हमारे घर का पुश्तैनी कंगन है।
मतलब मुझे मेरी सास ने दिया, उनको उनकी सास ने दिया, उनको उनकी सास ने दिया। तो सदियों से ये कंगन हमारे घर में एक पुश्तैनी कंगन के हिसाब से चलता आ रहा है। और ये जो कंगन है, इसको हम में से किसी ने कभी बेचा नहीं। क्यों नहीं बेचा? इसलिए नहीं बेचा क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। पर बेटा, अगर अगर तेरी जिंदगी में कभी ऐसा दिन आए कि जब तुझे बहुत तकलीफ हो, तब जाकर ये कंगन तू बेच सकती है। ये कंगन इसीलिए बनाया गया कि घर की बहू को कभी कोई भी तकलीफ न आए। अब जब मुझे मेरी सासू माँ ने ये बात बताई, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वॉज एक्सट्रीमली टच्ड। मैं काफ़ी इमोशनल हो गई, बहुत ही टच हो गई उनकी ये बात की अभी तो मैं घर में नहीं आई हूँ और इतना विश्वास करके इतनी अमूल्य चीज़ वो मुझे मेरे हाथ में दे रहे हैं। मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, पर एक सवाल मन में आया। मैंने उनको वो सवाल पूछ लिया। मैंने मेरी सासू माँ को पूछा कि मम्मा, आप बता रहे कि आपको आपकी सास ने, उनको उनकी सास ने, उनको उनकी सास ने ये कंगन दिया था। मम्मा, वो माता जी का नाम क्या था जिन्होंने सबसे पहले ये कंगन बनाया? Who was that grandmother who had for the first time made this kangan and thought about the well-being of the daughter-in-laws? Unfortunately, she did not have the answer to this question. समझ रहे हो आप इस बात को? कंगन घर में चल रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। ये एक प्रथा के जैसे घर में चल रहा है, पर ये प्रथा शुरू करने वाले, ये बनाने वाले ने जो मेहनत की थी, वो कौन है किसी को नहीं पता। इससे मुझे दो चीज की समझ आ गई। एक, अगर कुछ छोड़कर जाना है फैमिली में, तो ऐसा छोड़कर जाओ कि उस चीज के साथ आपका नाम भी जुड़ा रहे, उस चीज के साथ वो चीज बनाने वाले का नाम भी रहे। यार, नाम चला गया, क्या मजा, राइट? तो चीज भी रहे, नाम भी रहे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो करने का एक डिसिप्लिन भी रहे। अब आप सोच लीजिए कि इतने साल से वो कंगन मेरे घर में चल रहा है, तो कितना पुराना होगा वो कंगन। एंड आई एम श्योर हम सबके घर में ऐसा कोई ना कोई कंगन तो होगा ही, है कि नहीं? सबके घर में ऐसी कोई ना कोई पुश्तैनी चीज जरूर होगी। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ना नीलिमा जी, वो इन्वेस्टमेंट 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल का नहीं होता, 100 साल पुराना इन्वेस्टमेंट हमारे फैमिली में चलता है। अब यहाँ पर मैं आपके पास से सिर्फ एक प्रॉमिस लेना चाहूंगी कि घर में ना एक 5,000 का, अगर 5,000 का नहीं कर सकते कोई बात नहीं, 500 रुपए से आप SIP बना सकते हो दोस्त। एक 500 रुपए से आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। तो जो भी कैपेसिटी है, आप उस कैपेसिटी से अगर SIP एक ऐसी स्टार्ट करके जाते हैं जो आपके घर में इस सोने के कंगन का काम करे। आप आपके बच्चों को बोलकर जाओ कि बेटो, जब तक मैं जिंदा हूं, ये SIP चलाने का काम मेरा है, पर जिस दिन मैं नहीं हूं, उस दिन इस SIP को आप चालू रखना। ये एक SIP आप कभी नहीं तोड़ना। बाकी जो भी चीज का आपको जो करना है आप कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं, पर ये एक SIP घर में हो सके तब तक हमेशा चालू रखना। क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे मना करेंगे? आपकी इतनी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। तो एक पुश्तैनी SIP अगर आप घर में करके जाते हैं, मान लीजिए कि एक 5,000 की SIP अगर आपके घर में 50 साल तक चलती है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 साल तक चलती है, तो ये SIP से आपका घर का जो पिलर है वो कितना मजबूत हो सकता है। वी कैन हैव द नेक्स्ट क्लिक। अगर ये SIP आपको 12% का रिटर्न देती है, ठीक है, तो 12% है, 12% एक एवरेज रिटर्न है। अगर आप ऐसे फंड में जाते हैं जिसमें इक्विटी थोड़ा कम है, आपको थोड़ा मार्केट रिस्क कम लेना है, 12% जैसी प्रोडक्ट में आप जा सकते हैं। 12% से अगर आपकी ये SIP बढ़ती है, तो 12% के हिसाब से ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 19 करोड़ का एक पेड़ बना कर देगा। वी कैन हैव वन क्लिक प्लीज। ये आपको 19 करोड़ का पेड़ बनाकर देगा।
अगर ये SIP 14% देती है, मार्केट जो आपका है वो 16% से बढ़ता है, 15% म्यूचुअल फंड में बहुत सारी स्कीम्स देते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। मैं अभी भी उससे कम परसेंट की बात कर रही हूँ। अगर 14% भी आपका ये इन्वेस्टमेंट देता है, तो 14% के हिसाब से ये आपके फैमिली में 43 करोड़ का वेल्थ क्रिएशन आप करके जाएंगे। और अगर ये पेड़ 16% से बढ़ता है, तो 16% के हिसाब से आपका ये जो पुश्तैनी कंगन है, जो SIP के रूप में आप आपके फैमिली में आगे बढ़ाते जाएंगे, ये आपके फैमिली में एक 100 करोड़ का कंगन बनाकर देगा। अब इस कंगन में मजे की बात यह है कि बीच में अगर किसी को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, आपको जरूरत पड़ती है, आपके फैमिली मेंबर्स को जरूरत पड़ती है, इस केस में आप क्या कर सकते हो, इसमें से आप थोड़े पैसे निकाल सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास ये 5-5 हजार करते करते इसमें 50 लाख रुपए इकट्ठा हो गए, 50 लाख इकट्ठे हुए हैं, आपका बेटा है वो कहीं फॉरेन में जाकर बस गया है, आपको उसको मिलने जाना है, आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, इसमें से आप 10 लाख रुपए निकाल दो, आप घूम कर आ जाओ, मिलकर आ जाओ, उसको अच्छी सी गिफ्ट देकर आ जाओ, कोई बात नहीं, 40 लाख अभी भी उसमें जमा है और 5-5 हजार तो आप उसमें ऐड कर ही रहे हो, वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या होगा अगर आप बीच बीच में रुपए इसमें से यूज कर रहे हो, तो ये 100 करोड़ नहीं होगा, ये 40 करोड़ नहीं होगा, कोई बात नहीं, बावजूद इसके इसका जो कॉर्पस होगा, मैग्नस होगा, वो काफी बड़ा होगा, आपने सोचा है उससे काफी ज्यादा होगा, राइट? तो मैंने आपको यहाँ पर एक जर्नी दिखाई, वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये पूरी मैंने आपको जर्नी दिखाई कि 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ और 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़, ये पूरा पाथ मैंने आपको यहाँ आपके साथ डिस्कस किया। अब इस पाथ में आपको कितना चलना है ये आप डिसाइड करोगे, पर ये पाथ मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोग इस पर चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इसमें जर्नी स्टार्ट कर दी है और वो लोग देख भी रहे हैं कि ये कैसे उनकी लाइफ में मुमकिन हो रहा है। अगर आप चाहे तो आप भी इसको मुमकिन कर सकते हैं। आप जब भी एप्लीकेशन बनाते हैं म्यूचुअल फंड में, उसमें हमेशा एक नॉमिनेशन ऐड कर दीजिए। नॉमिनी ऐड करना कंपलसरी है और करना भी चाहिए। तो हमेशा आपके इन्वेस्टमेंट में नॉमिनेशन फैसिलिटी म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करते हैं, उसको आप यूटिलाइज कीजिए। और गोइंग टू द लास्ट स्लाइड, अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी कंप्लेन है, तो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, उसके रेगुलेटर जो है वो सेबी होता है। तो सेबी ने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है स्कोर्स, SCORES। तो स्कोर्स है वो और कुछ नहीं पर एक सेबी का कंप्लेन रिड्रेसल मैकेनिज्म सिस्टम है। वहां पर आप क्वेरी आपका लॉन्च कर सकते हैं और सेबी आपको आपकी क्वेरी है उसको देखती है, एड्रेस करती है और उसको सॉल्व भी करके देती है। तो यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस है और पूरा सिस्टम है वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है। वी कैन गो टू द लास्ट स्लाइड प्लीज। ये पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई चिट फंड की बात होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब कुछ ऐसी चीज देखते हैं, सुनते हैं जिसको हमने पहले किया नहीं, हमने उसको महसूस नहीं किया, हमने उसको ट्राई नहीं किया, तो बहुत बार ये भी एक सवाल मन में आता है कि अगर ये गलत हुआ तो, अगर ये कोई ऐसी स्कीम है जिसमें हमारे पैसे डूब जाएंगे तो, राइट? तो ऐसे सवाल मन में आना बहुत ही स्वाभाविक है। अगर ऐसा कभी भी कुछ भी आपको लगता है तो मैंने आपको बताया कि सेबी इसका रेगुलेटर है, तो यहाँ पर पूरा ट्रांसपेरेंसी है। आप उसके पोर्टल में जाकर जो भी कंप्लेन है उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो जो भी स्कीम आप खरीदते हैं वो सभी स्कीम आपको सेबी पर मिलेगी, दिखेगी। जो भी स्कीम होती है वो अप्रूव होती है, हमारे देश के रेगुलेटर्स है वो उसको अप्रूव करते हैं, उसके बाद आपके पास स्कीम आती है।
ऐसा नहीं है कि घर में 4 लोगों ने सोचा कि यार ये बहुत अच्छा है, एक काम करते हैं, ये 10-20 स्टॉक खरीद लेंगे, ये स्टॉक डबल हो जाएगा, लोगों के पैसे डबल हो जाएंगे। नहीं, उस हिसाब से काम म्यूचुअल फंड में नहीं होता। पूरा रेगुलेटेड सिस्टम रहता है, तो यहाँ पर कोई चोरी चपाटी की बात नहीं होती, राइट? तो एक वेल इन्फॉर्म्ड, वेल रेगुलेटेड एंड वेल एस्टैब्लिश्ड मार्केट में एंट्री करने के लिए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर हमारे ये जो सेशन है, इस सेशन को हम ये सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं, एक पॉज देते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ सेशन खत्म हो रहा है। आपका एज एन इन्वेस्टर जर्नी है वो यहाँ से शुरू होता है। तो आपकी ये जर्नी में आप बहुत ज्यादा कामयाब हो, Yeah, thank you, उसके लिए Prarthana ji. मैं आप सबको Thanks बहुत a बहुत lot, धन्यवाद and it देना was चाहूंगी। very और insightful, मैं चाहती and हूँ more than that, कि it इस was वुमेन्स डे very. पर You made कुछ a ऐसा great करें emotional कि connect. जो करने के बाद I was हमको really, ऐसा actually, I महसूस हो was fully कि dipped असल में in what वुमेन्स you डे were का telling, and सेलिब्रेशन there were आज many हमने things that you ये could एक very अलग स्टेप लेकर easily connect with सो the थैंक यू audience. सो मच, थैंक यू फॉर You कॉलिंग मी have, हियर yeah, you एंड have मेकिंग stressed मी अ the पार्ट importance of ऑफ SIP, and you योर have talked of जर्नी generations एज of वुमेन्स। SIP. थैंक यू सो मच। We as an advisor stretch normally to the 2 to 3 decades, but you have given a different insight, and I really thank you for that. I thank you for guiding us on this event, and I also thank Mr. Deepak Sharma, manager HDFC Mutual Fund, for facilitating this program and inspiring us to plan this event. Thanks a lot, Deepak ji. Also thank the entire थैंक team, यू सर। my team of Interinvest Gold Innovation, Mr. Deepak, Ms. Chandani, and Mr. Nilesh, for taking extra effort. We normally stop the business or slow down the business during the 3 to 4 events we do, and you have taken extra efforts. I thank you a lot. And I also thank all the participants of this show to show the zeal and setting aside your time on through in your busy schedule and joining us. Now, my message for the woman is that you are really blessed by nature, and as an investor, you need to succeed. And if I have to make a value proposition, or if I have to make some difference, then I will prefer to be with somebody who is less confident but who has a investor's DNA than somebody who is gents who are more confident. So that's why we are putting a focused effort on helping the women to be a better investor and uh, to participate in the wealth creation journey. In the interest of time, because the Women in Investing Awards are also required, I will be publishing it. So if you have any query, so Prarthana ji can take 1-2 query, and then we can move to the awards. Thanks, Prarthana ji. Yeah, anybody, if you have any queries, you can talk. You can put your queries, and if there are additional queries, then you can communicate to me, and Prarthana ji, I will get the answers and share with you. Yeah. Yes. Yes. बोलू शकतो सर. ऑडिओ ओपन करून क्वेश्चन विचारू शकतो. So one more thing, even if after the session there are some queries which come up, Yeah. बहुत बार ऐसा होता है कि सेशन के दौरान फीमेल्स को थोड़ा वो So any होता है कि questions, सबके please? सामने नहीं पूछना, कोई बात नहीं, आपकी क्वेरीज आप अमित जी और टीम को फॉरवर्ड कर सकते हैं. सर यू कैन मेल इट अक्रॉस टू Yeah, मी anybody एंड can आई विल unmute and ask the रिवर्ट question. टू दोस क्वेरीज ऑन मेल व्हिच यू कैन फॉरवर्ड टू द रिस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स. सो ऐसा नहीं है कि अभी जैसे ये सेशन खत्म होगा लॉग ऑफ कर देंगे तो उसके बाद आप सोचना बंद कर दे. आपको 4 घंटे के बाद भी दिमाग में कोई प्रश्न आता है, आप उसको पूछ सकते हैं. विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑन दैट.
Actually, I had a quick question. Do we have some live examples of women investors who have made a difference in their lives through the advice that you have shared today? So I would like to share a wonderful example, Lakshmi ji. Thank you for that answer. You would be surprised to have this answer. Can anyone say who is the youngest investor in stock market? स्टॉक मार्केट में सबसे कम उम्र में इन्वेस्ट करने या निवेश करने वाला इंसान कौन है? कैन somebody answer that? आई एम श्योर किसी को तो पता होगा. सबसे कम उम्र में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर का नाम क्या है? Many students have started investing, but I don't know. अब मैं ग्लोबली बात कर रही हूँ. यस डॉक्टर निराली. राकेश झुंझुनवाला. Okay, so Nirali ji, you are quite close to it, Warren Buffett. So ये बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि it is Warren Buffett, and 90% of the world knows that it is Warren Buffett. However, this is a wrong answer. This is a wrong answer. Warren Buffett started investing at the age of 13, but there is a child who started investing at the age of 7. At the age of 7, and I'm very proud to share that story with you. She is a female investor. Her name is Lauren Templeton. Okay, her name is Lauren Templeton. ये कैसे हुआ? अब ये बात निकली है तो 2 मिनट मैं ले लेती हूँ. ये कैसे हुआ? तो लॉरेन टेम्पल्टन बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ इन्वेस्टर. सर जॉन टेम्पल्टन जो एक बहुत बड़ा नाम है इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में, उनकी नीस होती है लॉरेन टेम्पल्टन. और वो जब 7 साल की थी तब एक दिन उनके पापा ने आकर उनको पूछा, बेटी विच स्टॉक यू वांट टू बाय? विच स्टॉक यू वांट टू बाय? एंड शी वाज सरप्राइज. शी इज लाइक स्टॉक मतलब क्या? स्टॉक का मतलब क्या है? 7 साल की लड़की को क्या पता स्टॉक का मतलब क्या है, राइट? बट एट दैट एज उसके फादर ने आकर उसको पूछा कि बेटा आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है. व्हेन शी आस्क्ड दैट उसका क्या मीनिंग है पापा, तो उसके पापा ने ऐसा बोला कि बेटा है आप किस कंपनी के मालिक बनना चाहोगे, आप क्या चाहोगे कि कौन सी कंपनी का ओनर आप बनो, कि राइट्स आपके पास है, उसको खरीदने का आप ड्रीम रखो. तो ऑफ कोर्स क्योंकि वो लड़की बहुत ही छोटी थी, उसकी जो दुनिया थी वो टॉयज की दुनिया थी, तो वो बताते हैं कि पापा कैन आई बाय डिज्नी, कैन आई बाय डिज्नी? एंड द फादर इज लाइक या श्योर, व्हाई नॉट. और उसके फादर एक शेयर डिज्नी का खरीद कर लाते हैं, और उस समय शेयर सर्टिफिकेट बनते थे. तो एक शेयर सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, उसको लैमिनेट करते हैं, और लैमिनेट करके उसकी बेटी के कमरे की दीवार पर ऐसे लगा देते थे. ठीक है. वैसे थोड़े थोड़े महीने में वो हर बार ये सवाल पूछते थे और एक एक स्टॉक उसको खरीद कर देते थे. अब वो लड़की का देखने का पूरा नजरिया बदल जाता है. उसको पता है कि थोड़े दिन के बाद पापा मुझे ये सवाल पूछेंगे, तो वो भी सभी चीजों को क्लोजली मॉनिटर करती है. उसकी मम्मी के साथ वो जब वॉलमार्ट में जाती है तो उसके दिमाग में आता है कि यार ये वॉलमार्ट तो बहुत बड़ी कंपनी है, इतने लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, ये कंपनी बहुत पैसा बनाती होगी, ये कंपनी भी मेरे को चाहिए. तो ये पूरा जो थॉट प्रोसेस है वो बच्ची के दिमाग में तब से आना शुरू हो गया. उसके पापा वो जो भी कंपनी का नाम देती उसका एक स्टॉक खरीद कर उसको दे देते थे. एक दिन एक दोस्त उनके घर आया और वो दोस्त ने देखा लड़की का कमरे की सारी दीवारें, वहां पर कोई फिल्म स्टार का फोटो नहीं था, कोई सिंगर डांसर का फोटो नहीं था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टॉक सर्टिफिकेट्स लगे हुए थे. वो फ्रेंड है वो बहुत ही एकदम से पजल्ड हो गया. उसने बोला कि ये सब क्या है लॉरेन के कमरे में? तो उसके फादर कहते हैं कि नथिंग यार, शी इज जस्ट बाइंग सम स्टॉक्स. एंड द फ्रेंड वाज अमेज्ड. बोले कि ये क्या बोल रहे हो? बोले हाँ, शी इज जस्ट बाइंग सम स्टॉक्स. एंड द फ्रेंड सेड, आर यू क्रेजी? Are you crazy? Do you think if you'll buy the stocks which are suggested by your daughter, it is going to be a lucky charm? And the father replied, no, it is not for the matter of being lucky charm. I am buying those stocks for her because I know one thing. I know one thing, that as a girl, she may buy
an expensive stock. She may buy an expensive stock at a bad price. So she may be buying a good company at a bad price or a wrong price, but अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, but she will never buy a bad company even at the cheapest price. Are you getting this? Why? क्योंकि 7 साल की लड़की को पता नहीं है पेनी स्टॉक क्या होते हैं. वो ऐसी कंपनी बाय करेगी जिसके नाम उसने देखे हैं, सुने हैं, जिसको वो यूज करती है. दूसरों को उसको नॉलेज ही नहीं है, राइट? तो ये हो सकता है आज उसने जब वो कंपनी खरीदी, वो शेयर बहुत ही हाई प्राइस पर चल रहा है, पर उसको कहाँ कल बेचना है. आज मान लीजिए आपने 55,000 पर गोल्ड ले लिया, उसके बाद गोल्ड 45,000 हो भी गया, आपको कहाँ कल बेचना है. जब आपकी डॉटर उसको बेचने जाएगी तब वो 1 लाख से ऊपर ही होने वाला है. तो क्या फर्क पड़ता है आज आपने 50,000 में लिया, 60,000 में लिया, डजंट मैटर. सो शी कैन बाय at a wrong price but she'll not buy a wrong thing. 7 साल की वो लॉरेन टेम्पल्टन आज एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टर है, बहुत ही बड़ी निवेशक है, ग्लोबली बहुत ही बड़ी कंपनी रन करती है. कभी जाकर लॉरेन टेम्पल्टन की स्टोरी अगर आप ढूंढेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा. बट ऐसी बहुत सारी फीमेल्स की सक्सेस स्टोरीज है जिसकी हम बात कर सकते हैं. जाकर आप पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा. और सर जो बुक आपको देने वाले हैं, ये बुक तो जरूर पढ़िए, क्योंकि वहां पर वॉरेन बफे ने कुछ खुद ऐसे कंसेप्ट, ऐसी स्टोरीज की बात की है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की. ऐसी बहुत सारी स्टोरीज वॉरेन बफे ने शेयर की है, और ये बात भी वॉरेन बफे ने खुद बताई है कि मैंने तो 13 साल में शुरू किया, बट लॉरेन वाज लकी वन. She got an opportunity to start at the age of 7. Yeah. So please do that. मैंने आपको जो कंसेप्ट कंगन का बताया वो भी इसलिए बताया कि हम सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, पर ऐसी चीज अगर हम हमारे बच्चों में ये एक हैबिट बनाकर जाते हैं, इट इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे. सो इवन टेक मनी मैनेजमेंट एज अ कंसेप्ट फॉर योर किड्स, नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ. Thank you very much. अमित सर, मैं एक बोलूं का? ओके. प्रार्थना मैम, आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट है. 2 चीजें मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी. एक वो कंगन वाला कंसेप्ट विच वी कैन कन्वर्ट इनटू एन SIP मैटर, आपने जैसे बताया उस तरीके से, जो कि चलता रहे, बच्चे भी उसे चलाते रहे, लाइक दैट. एंड द सेकंड, ये लॉरेन वाली जो स्टोरी आपने बताई, बहुत ही इंस्पायरिंग है. वेरी 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 इंस्पायरिंग. I would say thank you so much for sharing these 2 concepts. Thanks a lot. थैंक यू सो मच. थैंक यू निराली जी. एंड ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ स्टोरी बताने के लिए बता रही हूँ, मैं खुद इसको प्रैक्टिस करती हूँ. आई हैव 2 daughters. One is 10 now and one is 13. They started their investment journey before 3 years. They do buy their own shares. We keep asking them आपको क्या लेना है. तो वो सबसे पहले तो जहाँ पर उनको देखा है कि उनके रिलेटिव्स जहाँ काम करते हैं, तो उनके एक फूफा जी है, वो ITC में काम करते हैं. मैं पहले HDFC में काम करती थी. सो दे स्टार्टेड विथ द सेम थिंग कि one daughter said कि HDFC लेना है, another one said ITC लेना है. तो their first buy has been ITC and HDFC. We motivate them also to do this. जैसे पिगी बैंक में पैसे इकट्ठा होते हैं, हम उनको कहते हैं कि बेटा अभी कुछ खरीदना है, वो पैसे हमें देते हैं, उनके नाम से हम एक अलग अकाउंट उनके इन्वेस्टमेंट्स का करते हैं. उनकी SIPs भी चल रही है, उनको पता है कि वो SIPs कर रहे हैं. सो देयर वेल्थ क्रिएशन जर्नी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. वी हैव स्टार्टेड इट फॉर देम, बट वी लेट देम टेक द डिसीजंस टू डू दैट. हम हमारे हिसाब से जो करते हैं वो कर रहे हैं, वो उनको नहीं पता, पर उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं. एंड वी लेट देम डू दैट, वी मेक देम एंड that is one learning which is required. क्योंकि ये कोई स्कूल नहीं कराएगी आपके बच्चों के लिए, वो आपको ही conclude the करना question and answer session So with if this, you but like if it, you have then any please personal do queries, it then in your do, family also. contact me. I will मुझे share of Prarthana course madam बहुत number अच्छा with लगा you, आपने or you कॉम्प्लीमेंट can दिया, share, तो किसको you अच्छा can नहीं ping the लगता number अपनी as well तारीफ in the सुनना. chat box. So thank you so much. who But want that to, is not the have purpose. some The purpose query, is either अगर you आपको can बात अच्छी contact लगी me हो or I तो can प्लीज मैसेज को share her स्प्रेड number as कीजिए, well. आपके घर में फैमिली Prarthana में ji is okay इम्प्लीमेंट with that. कीजिए और Yeah. इसको आगे भी लेकर जाइए प्लीज. So
with Thank you, this, ma'am. we Surely I will conclude do it. the Thank you so much. learning session, financial education session, and move to a next 10-minute program of distributing the awards of women in investing. These awards we Thank you have so much. started last year. Last year was the first year, and this is the second year. We will be honoring the on sharing the good practices that actual investors are following and actual women are following in their personal life. So based on that, there were many entries and it was very tough to identify. So we are distributing the award to the three winners, and other than that there were very valuable suggestions. We have given it to an independent jury, and based on those suggestions we have shortlisted 20% top suggestions, and I will also be displaying those suggestions. So let's start the award program. Now let's come to the third award first. Second woman in investing award that we will be distributing from Interinvest Gold Innovation goes to Mrs. Lakshmi Panat. She is from Pune. Congratulations, Lakshmi. Lakshmi, are you there? Okay. Yeah. Just a minute. Is the screen visible? Yeah. Uh, I will share some of her practices and some of her insights which she has shared. I study the markets regularly. We have colored those things that are very important and relevant, and invest in a Yes, I'm there. Thank you so company much. with the strong fundamentals in Swadeshi companies. So companies with the Indian origin. And now there are many companies, Indian companies that are on the verge to be the Indian multinationals. Many of them are already there. My window of investment is long term, so it's a formula for success. I also look at conventional options like voluntary PF, postal savings scheme. This is very good thing to diversify your investments in various buckets. And this one thing appealed me a lot is donations also form a part of my social responsibility investment. Lakshmi is doing a research in oncology uh, along with the IMA, and it is artificial intelligence based research to identify the reasons for cancer. I congratulate you, Lakshmi, for that. Yeah. The second award goes to CA Deepika Shah. She is also from Pune. Deepika, are you there? There is a typo. It is basically a second award, but there is a typo error there. Deepika, are you there? I think she is not there. Uh, I will read out what are her practices. Her unique approach to personal finance is to diversify her investment and use different buckets. She is working for financial independence by creating multiple sources of income, and SIP Thank is you one so of the much, Amit. most helpful tools she feels. And she also insists on having term plan which also includes the existing liabilities like loans and health cover for every investors. And now it's the time for the first award, and the first prize goes to Miss Shruti Takalkhede. Shruti, congratulations, are you there? Yeah, Shruti is basically from Nagpur, but now she is in Pune only. Uh, Her insights are and her processes are very useful. I also liked lot of things which she shared. I started saving early, and the thing is that she and along with her would-be husband, both of them are investing regularly, doing the goal planning and
thinking in terms of goals more than thinking in terms of market. Their benchmark is not the market waves or market swings, but it is their Yes, I'm goals. there. Thank you. She is disciplined. I spend cautiously by avoiding the habits that drain my budget and maintain the necessary lifestyle at the same time. It is very important. You cannot live like a American mindset that there is no tomorrow. At the same time, you cannot live at extreme like Indian mindset that there is only tomorrow. So she is balancing, which appealed a lot. Yeah. Uh, I save for my future goals, short term and long term, and try to maximize my saving. I save a portion of my investments for rainy days. This is again very important. Each one of us must have an emergency fund to the extent of 6 to 12 months of expenses. So Shruti is following it. I have experimented with my savings and expenditure pattern, and recently she read the book Psychology of Money, and she is inspired by that book. She is practicing it, as well as she insists that every woman should read that book. Thank you very much, Shruti, for being vocal about your practices. Yeah, and it's not the matter of price actually, first prize or second prize. It's matter of being vocal and sharing the good practices, which should be inspiring everybody. Deepika has also joined. Deepika, you have got the second prize. Are you there, Deepika? Yeah. Uh, you have shared your good practices, and I have shared the same you before you joined, and I congratulate you for winning the prize. Yeah. Thank you And so much, now sir. Thank you. there were many important contributions which we couldn't ignore, and so we have identified some 20% valuable contributions, and this comes from Mrs. Saili Sole. She works in Canada, Yes, sir. and she Yes, has sir. shared her insights. I try to diversify my investments as far as possible and believe that having a strategic financial advisor is must. I strongly follow what Warren Buffett says, don't save what is left after Thank you, sir. spending, Thank you very rather much. spend what is left after saving. Because of the time difference, Siley is not able to join, but I thank her on behalf of my team to share her insights. Then Mrs. Runali Gokarna, she is into wealth management and she is in Dubai. Runali, are you there? Runali, yeah, yeah. Thanks a lot, Runali, for sharing such a nice practices. I follow simple rules of budgeting, saving, and investing, and this is something more inspiring. We didn't see towards this thing through that way. Finance minister of our country is woman, and so we can be a finance manager of our home, as it's truly said, Nari to Narayani. Thanks a lot, Runali, for sharing. And other than that, yeah. Other than that, Mrs. Tanaya Deshmukh and Mrs. Akanksha Hi, Karwal, they Amit. have Yes, yes, I'm also here, shared very much here. good things which I have summarized. By the way, those of who you are meeting me for the first time, I forgot to introduce myself. I am Amit Nafde and I am a Chartered Wealth Manager from American Academy of Financial Management. I am uh, into this investing world out of the passion to serve you and help you and guide you. Now I will share the summary of the total insights that have come from various sources and summarized Thank you it very into much, a Amit. single learning. This is that. Protect your family first, term and health insurance. Also have an emergency fund. Have investment in different investing buckets. uh, then baskets are of different type that advisor can advise you, but the important thing is distribute your money into different baskets. Then avoid impulsive spending, invest for long term and goals. Prarthana ji has said it today. She has redefined what is long term. My long term used to go to 40 years only, but she has talked of the generations.
invest first and spend later, study well before investing. These are the natural habits of women. Then those who are, this is very serious thing. If somebody is likely to slip into a debt trap, then they are not following any allocation rules of their income. The rules is 50-30-20 rule. I will request each one of you to visit YouTube and find the 50-30-20 tube, or I will be sharing my YouTube video on 50-30-20 rule. If you have the limits defined for spending your needs and wants, then nobody will slip into the debt trap at least. And working, this is a insight from Saili again, working with a strategic advisor is must. A financial advisor, you should be hiring the best person in your city. A financial advisor can virtually transform your life. It's not because I am a advisor I am saying this is not a sales program, but if you decide to go alone, then the fact is that 99% people are losing money in stocks and 90% investors are not successful in mutual fund market, because basically they are not able to beat even FD returns. So you need somebody when you go into the unknown terrain, it is sensible to have a guide with you. So these are the learnings from today's session, and with this I conclude today's session. Thank you. Thanks a lot. Thanks for joining. Yeah. थँक्यू सर. Yeah. Thanks a lot. Thanks.